Good morning, class 11. So, the unit we are discussing, that is a chemical bonding and molecular structure. In the last, we have discussed the shapes of the molecules. I will continue with the same topic. Okay. So, last we have discussed up to PCl5. Okay. Now I am going to discuss with you, that is the central metal which contains 6 bonds. That means I am going to take the example of SF6 here. So sulfur is a central element and fluorine is surrounded the sulfur. Okay, so when sulfur is a central element, then sulfur is having electronic configuration, that is 1s2, 2s2, okay, 2p6, 3s2 and 3p4. So this is the electronic configuration of sulfur: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. So up to the 2 it is totally filled. When I'll see third shell, in third shell p orbitals, they are still unfilled. Okay, so total electron those are present, valence electron, valence shell कौन सा है third, so valence electron 4 to 6 valence electron are present in sulfur. So accordingly I will first of all make the sulfur as a central element. Okay, and then I will show 6 valence electron with this for the sulfur: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right, now we are having the second element, that is what? Fluorine. And you know, in case of fluorine, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5. So each fluorine need one electron to get stable. So fluorine will share its one electron with that of what? It will share its one electron with sulfur. Okay, so I am making 6 fluorine that are surrounding it, and fluorine will share its one electron with the sulfur and form the bonds like this. So now you can count for fluorine, it is 8 electron of fluorine are complete. Okay, so proceeding to the structure, कहते हैं जब SF6 दैट मीन्स सेंट्रल एलिमेंट एक है और 6 हमारे पास उसके साथ बॉन्डेड एटम्स हैं, देन इस तरह के मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. ओके, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल. आई एम गोइंग टू मेक इट हियर. सो यहाँ पे क्या होता है, द 4 bonds they are present like this. Okay, and 2 bonds they are present like this. So this is given by Vesper. Okay, so even we will discuss the angle also here. The angle here is 90 degree. Okay, the angle for the each bond here is 90 degree. It is 90 degree for each bond. And here what, यहाँ पे क्या है? Fluorine, fluorine, fluorine and fluorine and again fluorine, and we are having fluorine. Again these bonds will be longer. These are known as which type of bond? We have discussed even in the last video. कौन से bond होते हैं ये? These are the axial bonds and these are the equatorial bonds. Okay, so these are equatorial, these are axial. Axial feel more repulsion, that's why they are having a longer bond length. Okay, although the angle is same here, that is 90 degree. Even you want to, if you want to represent, you can represent, if you want to represent them separately कि आप axial equatorial को separate दिखाना चाहते हैं, you can make a dotted region around SF4 और दो जो हैं that will be shown like this. Okay, so this is about what? The structure of SF6. Next structure which I am going to discuss, that is IF7. The next structure which I am going to discuss with you, that will be IF7. Now again the central element, who is the central element? Iodine. I am just going to write the outer electronic configuration of iodine. Okay, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयोडीन. अब आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? आपको कैसे पता आयोडीन कितनी होगी? कितनी बार मैं वैसे कर चुकी हूँ ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना. सो फ्लोरीन में देखिए क्या होता है, 2s2, 2p5. क्लोरीन में क्या होता है, 3s2, 3p5. ब्रोमीन में क्या होता है, 4s2, 4p5. और जब आयोडीन की बात आती है, 5s2, 5p5. ठीक है, शैली तो चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम रहेगी, यही पढ़ा है हमने.
So based on that, iodine is having electronic configuration that will be 5s2 5p5. This will be the electronic configuration of iodine. Now proceeding to the next part, if iodine is having this electronic configuration and फ्लोरीन की क्या होती है, you know फ्लोरीन, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आयोडीन में, 7. तो 7 फ्लोरीन है, फ्लोरीन आप दे चुके हो. सो ईच फ्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल. सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, पहले तो जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए. सो आयोडीन विल बी इन द सेंटर, ओके, विद इट्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उसको सराउंड करेंगे आयोडीन को, 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 electron will surround iodine. Okay, then there will be what we are having fluorine. Okay, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 and 7 fluorine. Okay, each fluorine what it will do, it will contribute one electron from its side so that it can complete its octet like this. Okay, ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा. सो हम ऐसा एज्यूम कर रहे थे कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट इट्स स्ट्रक्चर इज ओके. आई हैव नॉट रिटन द नेम ऑफ दैट वन ऑल्सो. यहाँ लिखना है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल, याद करना है, ठीक है इसको. दैट व्हेन एवर द सेंट्रल एलिमेंट इज देयर एंड 6 बॉन्डेड एटम बॉन्ड पेयर्स आर देयर, देन द शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल. ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी. एंड व्हेन दिस इज देयर देन इट विल बी पेंटागनल बाइपिरामिडल. pentagonal बाइपिरामिडल. ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपकी बनेगी इसके लिए, मतलब जब भी सेंट्रल एटम दैट इज बॉन्डेड टू 7 more atoms, then it will be pentagonal bipiramidal. Okay, now I am going to make the structure. We are having iodine that is in the center. Okay, and then fluorine. Okay, fluorine क्या होंगे, it will be like ओके, कोशिश करना कि पेंटागन बना सको, ठीक है. तो कुछ ऐसे हमारा जो है, जो हमारे 5 फ्लोरीन है दैट विल बी प्रेजेंट इन पेंटागन फॉर्म. ओके, पेंटागन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. एंड जो 2 फ्लोरीन होंगे लाइक दिस, ठीक है. और यहाँ पे भी फ्लोरीन और फ्लोरीन. क्लियर है. सो ये इसको बोला जाता है बाइपिरामिडल, ठीक है. और ये जो होंगे दैट विल बी 5 विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ पेंटागन. ओके, जो एंगल होगा इनके बीच में वो होगा 72 डिग्री. और ये जो है ये 90 पे प्रेजेंट होंगे. पेंटागनल बाइपिरामिडल, जो ये बाइपिरामिडल है ना, दिस विल बी प्रेजेंट एट 90 डिग्री. ये 90 डिग्री पे होंगे. अभी ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे 90, इसीलिए मैं वहाँ पे बना नहीं रही हूँ. लेकिन याद रखना, ये जो 2 एंगल होते हैं इन दोनों के लिए 90 डिग्री होगा, और बाकी जो 5 बॉन्ड है उनके लिए हर एक में आपस में एंगल 72 डिग्री होगा, ठीक है. अब ये तो थे नॉर्मल मॉलिक्यूल्स. ओके, अभी हम बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स की जिनमें क्या होता है. अब सबके सब जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन उसमें सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें. जब बॉन्डिंग में कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सो इन दोज केसेस वी आर हैविंग मोर टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स which are different from the expected one. Okay, now I am going to discuss that one also with you. Okay, more examples we will discuss. So you can see I have written a topic here, exceptional geometries. Okay, so the first example which I am going to discuss with you here, that will be of sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड, बड़े ध्यान से देखना, इजी बहुत है, सिर्फ समझना है. सो वी आर हैविंग सल्फर डाइऑक्साइड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम करते ही हैं, व्हाट यू विल डू, यू विल यूज अ सल्फर, यू विल राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इट विल बी व्हाट, 3s2 3p4. आई हैव रिटन जस्ट आउटर नाउ, क्योंकि कितनी बार रिपीट हो चुकी है. सो आई हैव रिटन 3s2 3p4, दैट इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ sulfur. Now another element we are having what, oxygen.
right? So in case of oxygen, what you have, oxygen में क्या है, we will have 2p4, right? 2p2, 2p, sorry, 2s2, I'll write it again, 2s2, 2p4. So this is we are having, because oxygen is having atomic number that is 8, 1s2, 2s2, 2p4. So oxygen is having 6 electron in its valence shell, sulfur is also having 6 electron. Now we usually try to complete the octet of the elements which are bonded to central atom, not of central atom, the elements which are bonded to central atom. So if I'll see the element that is atom, that means bonded to central atom, that is oxygen. So I have to complete the octet of oxygen. So oxygen having how many electron? You can see how many are there? 6. So it needs how many to get stable? 2. Each oxygen need how many? 2 electron. So what will be there? Sulfur will be the central element. Okay, here sulfur is a central element. Now if sulfur is a central element, it is having what? 6 electrons. Okay, valence electrons. Now what the sulfur will do? Here one oxygen is there, another oxygen is there. I am writing both are having 6 valence electron, so I will make those 6 also, so that it will be more clear to you. So this oxygen also need 2 electron, this also need. So what they will do, they will share their 2 electron, any of the 6 electron may say, they will share its 2 electron. First of all, this oxygen, it will share its 2 electron with the sulfur, and this oxygen will also share the 2 electron with the sulfur, and we will get this type of arrangement. We have this type of arrangement, okay, that will be sulfur, oxygen, oxygen, and we will have लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ अरेंजमेंट आएगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट आएगा. ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, दो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इट विल शेयर विद सल्फर, एंड सल्फर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए. सो यहाँ पे जो बॉन्ड आएगा वो डबल बॉन्ड आएगा ना, देखिए 1 2, यहाँ भी 1 2 डबल बॉन्ड आएगा. अब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने शेयर कर लिए, 2 इस साइड 2 इस साइड, कितने रह गए उसके ऊपर? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया, जिसको हम बोलते हैं, आई विल रिप्रेजेंट इट विद डिफरेंट कलर. यहाँ पे मेरे पास एक पेयर रह गया, ओके, दैट इज नोन एज अ लोन पेयर. ओके, इट इज नोन एज अ लोन पेयर. अब होगा क्या, यहाँ पे यू आर एक्सपेक्टिंग, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, माइट बी यू आर एक्सपेक्टिंग या तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, ठीक है, और अनदर एक्सेप्शंस आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इट शुड हैव मतलब आइदर हैव अ BF3 की तरह ट्रायगनल प्लेनर होगी, बट नो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि इसके पास क्या है 3, हमने ये माना था कि अब देखो सेंट्रल एलिमेंट को देख के हम जज करते हैं, तो इसके पास 3 पेयर थे, तो 3 पेयर के बेसिस पे हम ये जज कर सकते थे कि इट शुड हैव द ज्योमेट्री दैट विल बी लाइक BF3, बट इन एक्चुअल इट्स शेप इज बेल्ट शेप होती है. ठीक है, दैट विल बी सल्फर. ओके, द लोन पेयर इज प्रेजेंट हियर, ऐसे रिप्रेजेंट करना है लोन पेयर को. ठीक है, this is a lone pair, okay, that is having how many electron? 2 electron. This is lone pair, and what is there? Sulfur double bonded with oxygen on one side, double bonded on another side. So it is having not a trigonal planar arrangement. ठीक है, जैसे BF3 में था ना, तो इसका लीनियर अरेंजमेंट है, 180 का एंगल है, ना ही इसका 120 का एंगल है. It is different from both. The reason due to Vesper theory, because there will be a repulsion, lone pair bond pair repulsion, bond pair repulsion, due to which what will happen, there will be a different geometry than from the expected one, and that geometry is known as a bent shape. Okay, it is a bent shape बोल सकते हो आप इसको, और you can say V shape. Okay, bent shape or V shape geometry is there, and the angle between these 2 bonds, okay, the 4 bonds, लेकिन ये जो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं इनके बीच में जो एंगल होगा that will be 190 डिग्री 0.5 मिनट्स. ओके, ये हमारा एंगल होगा इसके बीच में. सो ये हमारा स्ट्रक्चर था
SO2, that is sulfur dioxide. The next structure which I am going to discuss, because we are discussing all the exceptional geometries here, the maximum I will try to cover, okay, although few of the examples you can try by yourself. If you have the doubts, you can ask me anytime, okay. So you just have to message me, you can ask, okay. So the next example I have to discuss, that will be of ammonia. Very famous, okay, very famous. Now ammonia, in case of ammonia, you can see what is there. This is nitrogen, okay, and the electronic configuration of nitrogen is 2s2 2p3. 7 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 मैंने स्किप कर दिया, मैं सिर्फ आउटर लिख रही हूँ. सो आउटर इज 2s2 2p3. ओके, कितने वेलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5. कितने एलिमेंट, कितने सॉरी एटम्स कितने बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ? 3. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन नीड? 3. बिकॉज इफ इट हैज़ टू फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन, इट नीड हाउ मेनी? 3 इलेक्ट्रॉन. 3 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर एंड अनदर वन, वी आर लेफ्ट विद व्हाट? ये 3 तो शेयर कर लेगी ये हाइड्रोजन के साथ. वी विल लेफ्ट विद व्हाट? 2s2. 2s2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? लोन पेयर. समझ आ गया? सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा नाइट्रोजन. ओके, हाइड्रोजन यू ऑलरेडी नो 1s1. सो ईच हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज देयर, अब क्या बनेगा इसका अरेंजमेंट? देखिए ज़रा. इट वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है, it was expected that it should have a tetrahedral arrangement. ओके, जैसे कि कार्बन CH4 में था. ओके, इसमें एक्सपेक्ट किया गया कि इसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा. क्यों एक्सपेक्ट किया गया? क्योंकि इसमें देखिए 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 लोन पेयर बच रहा है. इसमें क्या था? 2 बॉन्ड बन रहे थे, 1 लोन पेयर बच रहा था. तो इसका एक्सपेक्ट किया गया था. एक्सपेक्टेड क्या था इसका? दैट इट शुड बी लाइक BF3, है ना. बट इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, इट इज़ डिफरेंट. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है? एक लोन पेयर बच रहा है, 3 ये शेयर कर लेगा. सो बेस्ड ऑन दैट इसका एक्सपेक्टेशन क्या है? इट विल बी लाइक CH4. एक्सपेक्टेड है, ओके, क्योंकि कार्बन में भी 4 बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन के साथ. तो कहते हैं यहाँ पे भी 4 है, तो 4 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है. तो इसका एक्सपेक्टेड भी है लाइक CH4 होना चाहिए था, और ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल. ओके, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, बट इट इज़ नॉट सो. वाई? क्योंकि लोन पेयर पड़ा है. ये जो है तो है, इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है, एक तरह का बॉन्ड तो है, लेकिन वो है क्या? क्या? लोन पेयर, जिसकी वजह से ज्योमेट्री क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, क्योंकि हमारी वेस्पर हमें क्या बताती है? वहाँ पे लोन पेयर, हमारी वेस्पर ने हमें क्या बताया था? लोन पेयर रिपल्शन होती है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, देन हमने बताया था बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है. हमारी वेस्पर थ्योरी ने हमें ये बताया था, है ना. सो इफ इट टोल्ड अस दिस थिंग, देन बेस्ड ऑन दैट वी हैव द ज्योमेट्री दैट वुड बी एक्सपेक्टेड से डिफरेंट होगी. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं. देखिए कैसे समझाती हूँ मैं आपको फिर से डिटेल में. देखिए ज़रा, ये है नाइट्रोजन, ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया है? 5. 1 2 3 4 5. और यहाँ पे हमारा कौन है? हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवा रहा है? 1 2 3. सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ कितने बॉन्ड पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के पास, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर. जब 4 पेयर हैं तो 4 ही तो इसके पास थे. जब तुम कार्बन का बनाते हो तो उसका भी कुछ ऐसा ही होता है ना. सो कार्बन में भी तो 4 पेयर हैं, तो इसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर क्या पड़ा है? जो चौथा पेयर है वो एक लोन पेयर है, दैट इज़ नॉट अ बॉन्ड पेयर. ठीक है, सो ये एक लोन पेयर माना जाता है. सो इसी की वजह से इट्स अरेंजमेंट इज नॉट व्हाट? इट्स अरेंजमेंट इज नॉट टेट्राहेड्रल. इट इज हैविंग अ न्यू ज्योमेट्री दैट इज नोन एज अ पिरामिडल. ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक अमोनिया pyramidal geometry. Okay, ammonia is having which geometry? Pyramidal. Now pyramidal क्या थी, कैसे होती है? बना रही हूँ मैं. नाइट्रोजन, ओके, हाइड्रोजन, 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 एंड द एंगल हियर इज 107 डिग्री. 107 होना कितना चाहिए था? टेट्राहेड्रल में कितना होता है? 109 डिग्री,
है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा कितना है 107। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लेकिन यहाँ लोन पेयर तो एक ही है, तो लोन पेयर रिपल्शन तो है नहीं। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, यस ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ऐसे ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अब यहाँ पे रिपल्शन होगी, यहाँ पे भी रिपल्शन होगी, टू लीड व्हाट, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिनिमम रिपल्शन। रिपल्शन होती जाएगी तब तक जब तक स्टेबिलिटी की नहीं आ जाती। जैसे ये रिपल्शन होगी तो ये बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी थी, है ना, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, यहाँ पे भी इट विल बी बीपी रिपल्शन। आई एम राइटिंग हियर, मैं डिटेल में बना रही हूँ, ठीक है। मैंने उस स्ट्रक्चर को देखो खराब कर दिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि इसका भी एक नेगेटिव चार्ज क्लाउड है, इसका भी नेगेटिव चार्ज है, यही बोला है ना हमारी बेस्पर ने। बट देयर रिपल्शन इज लेस देन दैट ऑफ दिस रिपल्शन। ये भी नेगेटिव है लेकिन इसका कहते हैं रिपल्शन बहुत बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन, जिसकी वजह से एंगल जो 109 से 107 पहुंच जाता है। हम टेट्राहेड्रल एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए वो टेट्राहेड्रल ना होके क्या बन जाता है, पिरामिड। ठीक है बेटा जी। सो दिस इज अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ नाइट्रोजन, ammonia, sorry. Okay, the next one I am going to discuss, that will be of water, that will be the next page. So the next example I am having, that is of water molecule. ठीक है, the next example we are having, that is water, H2O. अब कौन है central element यहाँ पे, oxygen, right? So oxygen is a central element here with electronic configuration 2s2 2p4, right? This is the electronic configuration of oxygen. Now what will be we are having next, hydrogen you already know 1s1. So oxygen need how many electron, oxygen को तो चलो भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन to get stable। अब हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की एक्सपेक्टेशन देखें, यहाँ पे देखो आप देखो कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे जब आप ऑक्सीजन है अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2p4 है, 4 में से देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ये हमारा 2p ऑर्बिटल है, इट कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। सो ऑक्सीजन विल शेयर इट्स दिस एंड दिस इलेक्ट्रॉन विद व्हाट, एक ये H1, ये हाइड्रोजन के H1 मतलब मैं नाम दे देती हूँ H1, एक हमारा H2 होगा, 2 हाइड्रोजन है ना। सो दोनों के साथ एक H1 के साथ एक H2 के साथ शेयर कर दिया। सो ऑक्सीजन इज लेफ्ट विद हाउ मेनी, एक ये बच गया, पेयर का पेयर इलेक्ट्रॉन ये बच गया वैलेंस शेल में, और एक ये बच गया, S भी तो बचेगा ऐसे ही, ठीक है। सो S इज देयर, P इज देयर। अब ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सराउंड कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, 2 3 और 4 ही बने इसमें भी। देखो ज़रा दोबारा ध्यान से देखना, एक तो ये है जो शेयर नहीं कर रहा, ठीक है, दिस विल बी अ लोन पेयर। एक ये पेयर होगा जो ऑक्सीजन शेयर नहीं कर रहा, सो दिस विल बी अ लोन पेयर। एक ये बॉन्ड पेयर होगा जो ऑक्सीजन ने शेयर करके हाइड्रोजन ने एक शेयर इलेक्ट्रॉन करके बना, और ये बॉन्ड पेयर होगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ बनाऊँ, जनरल स्ट्रक्चर पहले मैं बना रही हूँ। सो हम अगर स्ट्रक्चर बनाएं, दैट विल बी ऑक्सीजन, यहाँ हमारा हाइड्रोजन है भाई, यहाँ हमारा हाइड्रोजन है। सो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 मैंने यहाँ बना दिए, 2 ये वाले, 2 S वाले, 2 ये मैंने बना दिए। अब ये जो देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड पेयर ने सराउंड किया है, 1 2 3 4, मतलब इसमें बॉन्ड पेयर अगर मैं लीगली बोलूँ तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। ये क्या है, LP, ये है LP लोन पेयर, और ये 2 हैं बॉन्ड पेयर। इसी की वजह से अब देखो जब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं तो ये फिर से किसके जैसा हो गया, 4 पेयर ही तो सराउंड कर रहे थे इसको भी। ये कौन था, टेट्राहेड्रल। इसका शेप ऐसा नहीं होता, गलती मत कर देना, पेपर में ऐसे बनाना है, ठीक है। ये कुछ ऐसा शेप था टेट्राहेड्रल, हमारा ऐसी शेप है, 109 एंगल होता है हर बॉन्ड के बीच में। सो ये भी तो क्या था, 4 बॉन्ड पेयर ही थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सो यहाँ भी वही है, बट यहाँ पे ये जो है ये शेयर्ड नहीं है, ये क्या है, लोन पेयर।
सो फिर से स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, एंगल होना चाहिए था 109, बट हो क्या जाएगा अब? अगेन व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? अब फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा एंगल, है ना, और शेप ज्योमेट्री भी डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द वाटर। आज तक आपने वाटर बहुत यूज़ किया है, लेकिन आप ज्योमेट्री, अब क्या ज्योमेट्री है इसकी? दैट इज हैविंग दिस एंड देयर नोन पेयर। मैं सेपरेट कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जस्ट टू इलेबोरेट। देखिए भी क्या ज्योमेट्री बनी, दो लोन पेयर पड़े हैं, ये बने हमारा एक्चुअल जो है इसको, ये तो ऐसे ही पड़े हैं, तो ये हमारा बना वी शेप बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो इसको? बेंट। ठीक है, सो वी आर हैविंग बेंट शेप एंड एंगल हेयर इज, इसमें देखो एंगल कितना हो गया 104 डिग्री। अब देखो जरा कंपेयर करो तो कर सकते हो। अब देखो ज़रा, मीथेन 4 ही बॉन्ड पेयर थे इसमें, और एंगल हमारा था 109.8 मिनट्स। ठीक है, 109 डिग्री 0.8 मिनट्स। अब जो उसके बाद हमारा कौन आया? NH3। इसमें 3 बॉन्ड पेयर थे, एक लोन पेयर था। ठीक है, ऐसे कई बार हम अमोनिया लिखते हैं, ऐसे इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर बना देते हैं। सो इसका जो एंगल होगा दैट विल बी व्हाट? 107। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर था। अब जैसे ही वाटर आया तो वाटर में क्या है? एंगल हो गया 104 डिग्री। अब इसमें कौन सी रिपल्शन थी? सिर्फ बॉन्ड पेयर, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं था। यहाँ पे दो तरह की रिपल्शन आई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। एंड अगर मैं वाटर की बात करूँ तो यहाँ पे कौन सी रिपल्शन आई? लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। 3 तरह की रिपल्शन आई। देखो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लोन पेयर सबसे ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गई, इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गई, फिर बॉन्ड पेयर भी आएगी। तो इसीलिए इसका एंगल कितना हो गया? 104 डिग्री। क्लियर है? सो दिस इज द शेप ऑफ वाटर। आपको इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, फ्रॉम योर बुक, सो दैट इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। ओके बेटा, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स विच आई एम गिविंग टू यू, यू हैव टू सॉल्व इट बाय सेल्फ। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, क्योंकि खुद कुछ प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को तभी आएंगी। सो SF4 यू हैव टू डू SF4। ओके, ये सब एक्सेप्शंस का ही पार्ट है, ये मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। नेक्स्ट वी आर हैविंग ClF3। ओके, इनका शेप्स आप देख सकते हो, लेकिन पहले आप कुछ ट्राई करेंगे खुद से, then only then we are having xenon F2. So 3 examples I am providing to you in this video: SF4, ClF3, xenon F2. Okay, so you have to discuss these geometries with me. Okay, thank you very much. So this is the video of today. Hope so you will learn a lot from this.